بعض عیسائی مفکرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. تو اگر ہم تاریخ اسلام کو مطالعہ کریں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مسلمان سپہ سالار جو ہیں وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو تین باتیں رکھتے تھے سامنے کہ یا ہمیں جزیہ دے دیں یا اسلام قبول کر لیں, اور تیسری بات یہ کہتے تھے کہ اگر نہیں دونوں میں سے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہے. تو کیا یہ بات مطلب ایسی ہے یا اس میں کیا بات ہے؟ اگر یہ بات ایسے ہے تو اس سے تھوڑا سا گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید واقعی جس طرح زبردستی کہ کسی کو جو ہے نا ڈرا دھمکا کے کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے. ٹھیک ہے جی حسن صاحب, بالکل. عرفان صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا سوال مل گیا, تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے, لیکن حافظ مظفر احمد صاحب سے کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک 60 سیکنڈ کا جواب مل سکے. جی حافظ صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف صاحب, یہ میں پوری طرح سوال نہیں وہ سن سوال ان پایا. کا یہ ہے کہ جو کہا جو یہ جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو اس کا جو کہتے ہیں کہ جس بنیاد پہ یہ اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ, وہ یہ ہے کہ جب بھی فتوحات کے دوران جب مسلمان کسی ٹیریٹری میں پہنچتے تھے, کسی جگہ پہ کانکویسٹ کرتے تھے, وہاں کے لوگوں کو جو 3 آپشنز دی جاتی تھیں وہ یہ تھیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو, یا جزیہ دیو, یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس سے تو اگر تو یہ حقیقت ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, تو اس کا مختصر سے جواب کی آپ سے درخواست ہے. جزاک اللہ. میں مختصراً عرض کروں گا. بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. اور جہاد کے بارے میں قرآن شریف کی یہ تعلیم ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور ان سے زیادتی نہیں کرنی. اور تیسرے فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ, جب وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور پھر اسے آگے نہیں بڑھنا. اب بنیادی طور پر ہم بعد کے بادشاہوں کے زمانے کی تو کوئی ضمانت نہیں لے سکتے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کبھی بھی اسلام نے جبر کے طور پر کہیں بھی حملہ نہیں کیا, کہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلایا گیا. ہاں, جن لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ شروع ہو چکی تھی مختلف علاقوں میں, وہ روم کی سرحد پر بھی تھی, وہ عراق کے حوالے سے ایرانی سرحدوں پر بھی سرحدوں پر وہ چیز شروع ہو چکی تھی, وہاں دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں نے اور اسلام کی جو مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے تھے ان علاقوں میں اس کا دفاع کرتے ہوئے ضرور تلوار اٹھائی ہے. اور جو حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ یہی تھا, امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. یہ جنگ کے ختم کرنے کے بارے میں تھا, نہ کہ جنگ کے شروع کرنے کے بارے میں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہو جاؤ, اسلام قبول کر لیں تو ہم جنگ ختم کر دیں گے, یہ جنگ شروع کرنے کے بارے میں نہیں تھا. جنگ تو وہ لوگ شروع کر چکے تھے, اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ جزیہ دے دیں, مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو لوگ جنگ کی حالت میں تھے ان کو یہ آپشن دیے جاتے تھے. کبھی بھی کسی ایسی قوم پر جا کر مسلمانوں نے از سر نو حملہ نہیں کیا کہ جس نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع نہ کی ہوئی ہو کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے دو اور ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بنیادی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. جن لوگوں نے حملے کیے ان سے دفاع کے طور پر مسلمانوں کی طرف سے ضرور دفاعی مقابلہ کیا گیا ہے, دفاعی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن اثر نو کسی ملک پر اس کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کے آغاز کے بغیر مسلمانوں کی طرف سے ان پر حملہ نہیں کیا گیا. جی بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آج اختتام کریں, تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس رہا ہے اس میں حافظ مظفر احمد صاحب آپ سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں, پچھلے پروگرام میں ایک کالر نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے تھے, لیکن بالکل آخری منٹ پہ تقریباً ان کو ایک کال آئی تھی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ جواب دیا جا سکے. وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دے دیں. وہ جاننا یہ چاہتے تھے کہ جماعت احمدیہ میں امیر معاویہ کو عزت سے کیوں یاد کیا جاتا ہے جبکہ ان کے ہاتھوں بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور اسلام میں اختلافات کی داغ بیل ڈالی گئی.
हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब। जज़ाकल्लाह आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सवाल की तरफ आते हुए एक तो ये गुजारिश करूंगा कि समरीन साहिबा ने बड़ी जज़्बाती बात की थी कि ऐसी बातें टीवी चैनलों पर बैठकर करना बहुत बुरी बात है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का मकाम हमारे लिए उम्मुल मोमिनीन का है, वो मोमिनों की माँ है, और पाकों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी इज्जत और उनके हवाले से अगर ऐसी बातें या सवाल आएंगे तो क्या वो बुरी बात नहीं है जिससे करोड़ों इंसानों के दिल मजरूह हो सकते हैं? और जब उनका जवाब देने की बात हो तो फिर ये कहना कि ये बुरी बात है, ये इसलिए भी मुनासिब नहीं कि जो बातें आप समझ रहे हैं कि टीवी चैनलों पर न करें वो तो खुले आम हो चुकी हैं। जो मैंने अर्ज किया था उसकी वैलिडिटी के हवाले से बात हुई थी, मैं उसमें लंबा नहीं जाना चाहूंगा, अगर किसी की दिल आजारी होती है तो हमें उसकी जरूरत नहीं जाने की। लेकिन प्रेगनेंसी के लफ्ज के नीचे हु इज द यंगेस्ट गर्ल ऑन रिकॉर्ड टू गेट प्रेग्नेंट, इंटरनेट के अंदर पूरी तफसीलात मौजूद हैं, और हमने कब इनकार किया है कि कोई तभी कैफियत पैदा नहीं हुई थी? वहां पूरी तफासील मौजूद हैं, नाम मौजूद है, वो बच्चा जो पैदा हुआ था ये भी बताया गया है कि वो 40 साल की उम्र में उसकी वफात हुई, वो दीगर तमाम तफसीलात हैं, मैं उनको छोड़ता हूं। मगर मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि अगर आपके जज़्बात को तकलीफ होती है तो आप ये भी तो सोचें कि करोड़ों इंसान जो उन शख्सियात से एक गैर मामूली अदब और मोहब्बत और इश्क का ताल्लुक रखते हैं, अगर उनके बारे में आप सवाल देंगे और हम इम्कानी तौर पर आपको उस हवाले से अगर कोई जवाब पेश करें तो उससे फिर तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि इत्मीनान होना चाहिए कि ये बात इस तरह की मौजूद है। एक सवाल आपने ज़िम्नन, मैं 1 मिनट और भी लूंगा आपका उस सवाल की तरफ आते हुए, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने उठाया था कि आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मिर्गी के हवाले से एतराज होता है, उस जमाने में जो ऐनी शाहिदीन थे उनका क्या रद्द अमल था। ये बहुत दिलचस्प बात है, और इस हवाले से मुझे एक वाकया याद आता है जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने बहुत तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया कि ये बहुत ही पुराना सवाल है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समेत दीगर अंबिया पर भी किया गया। दौरे हाजिर में जदीद साइंसी और तिब्बी तहकीकात की रोशनी में खुद यूरोपियन मुस्तशरिकीन इस एतराज को लग़्व समझ कर छोड़ चुके हैं, और अब ये पहले की तरह आम नहीं रहा, बल्कि बाद ने, जैसा कि इमाम साहब ने हवाले भी दिए, इसकी वाज़ेह तरदीद भी की है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुफारे मक्का ने लोगों को बदजन करने के लिए ये बात मशहूर कर दी थी कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दिमागी बीमारी है। चुनांचे एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हुआ। अरब का एक मशहूर तबीब जिसका नाम जम्माद था और जिसे दिमागी बीमारियों के इलाज का बहुत दावा था, उसने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी अफवाहें सुनी तो अज़राए हमदर्दी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और दिमागी बीमारियों वगैरह में अपनी महारत जितलाकर इलाज की पेशकश की और कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तसल्ली से उसकी बातें सुनते रहे, फिर जवाबन गुफ्तगू करते हुए आपने अरबी मसनून खुतबे से आगाज फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। जब उस तबीबे हाज़िक ने अपने कमालात बयान करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुना जिसमें अपनी आइजी और अल्लाह ताला की हम्द करके उससे मदद चाहिए गई थी, तो हैरान शशदर होकर रह गया। वो इस फसीह व बलीग कलाम का दीवाना हो गया। उस पर हकीकत खुल गई कि इस पुरमग़ज़ कलाम करने वाले को कोई दिमागी बीमारी नहीं हो सकती। वो भूल गया कि वो तो एक तबीब माहिर के तौर पर इलाज करने आया था। खुतबे के शहर में ऐसा गुम हुआ कि अर्ज किया, या रसूलल्लाह एक दफा फिर ये कलिमात दोहराइए, मैंने तो आज तक ऐसा कलाम नहीं सुना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस खुतबे के अल्फाज दोहराए तो वो बेचैन होकर बोला, एक दफा और ये कलिमात इरशाद फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ा तो उसने कहा, लक़द बलग़त नाऊसल बहर, आपने तो समंदर की गहराई जैसा फसीह व बलीग कलाम किया है। तब उसे समझ आई कि तबीबे रूहानी तो ये हैं और मैं तो मरीज हूं। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरा इस्लाम कबूल कीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मिर्गी वगैरह का एतराज करने वाले तो सदियों बाद पैदा हुए, सुने सुनाए एतराज करते हैं। ऐनी शाहिद और तबीब ने मुआयने के बाद जो गवाही दी उससे बढ़कर क्या गवाही हो सकती है। कुरान शरीफ ने इस एतराज के जवाब में बहुत ही सच कहा था, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अखलाक गवाही देते हैं कि ये किसी दीवाने या मजनून का कलाम नहीं है। बस वाक़या यही है कि ज़हे खुल्क़ कामिल, ज़हे हुस्न ताम
अलैहिस्सलाम। अब उस सवाल की तरफ आते हैं कि अहमदी सिर्फ थोड़ा सा एक तो ये कि मैं नाजरीन की याद दहानी के लिए सवाल भी दोहरा दूं और ये भी बता दूं कि अब वक्त जो है वो कम तर हो गया हमारे पास। सवाल ये था कि जमात अहमदिया में अमीर मुआविया को इज्जत से क्यों याद किया जाता है जबकि उनके हाथों बहुत से सहाबा शहीद हुए। जी हाफिज साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अहमदियों को दुनिया किसी पहलू जीने नहीं देती। आज तक तो हम इस एतराज का जवाब देते आए कि अहमदी अहले बैत और सहाबा की इज्जत क्यों नहीं करते। आज ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि अहमदी एक सहाबी रसूल हजरत मुआविया को इज्जत से क्यों याद करते। इस बारे में ये उसूल याद रखना चाहिए कि जमात अहमदिया का हर मसलक कुरान और सुन्नत की पैरवी में। अहमदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे इश्क व मोहब्बत की वजह से सहाबा को इज्जत से याद करते हैं। हमारे मौजूदा इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ने अपने खुतबे में फरमाया कि हमारे लिए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब प्यारे ही बहुत प्यारे। तो हज़रत मुआविया एक सहाबी रसूल थे, मगर वो एक इंसान भी थे जो खता का पुतला होता है, और उनसे भी बात गलतियां सरजद हुई जिनका मामला खुदा के साथ है। आज 1400 साल बाद बैठकर हम उस पर कोई मुहकमा तो नहीं कर सकते। दुनिया की अदालतों में 14 साल गुजर जाएं तो वो कहते हैं कि जी वो गवाहियां खत्म होने की वजह से मुकदमा टाइम बार्ड हो गए, और ये तो 1400 साल हो गए। उनकी बड़ी गलती वक्त के इमाम और खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बैत न करके उनके मुकाबले पर आना, और इसके नतीजे में जंग सफ़ीन में सैकड़ों मुसलमानों का खून होना है। इस जमाने के हक में अदल हजरत बानी जमात अहमदिया ने अपनी किताब सिरुल खिलाफा में, जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का बुलंद मकाम और मर्तबा बयान किया, वहां ये वाज़ेह फरमाया कि हक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ था, और जिसने भी उनसे जंग की उसने बगावत और सरकशी की। ये दुरुस्त है कि हजरत अली की वफात के बाद जब हजरत इमाम हसन उनके जानशीन हुए तो उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से मुसालहत के बाद उनकी बैत कर ली और उनकी खातिर हुकूमत से दस्तबरदार हो गए और हजरत मुआविया खलीफा कहलाने लगे। मगर हमारे नज़दीक वो खलीफा नहीं बल्कि महज एक बादशाह ही थे। चुनांचे जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की खिलाफत को मुलूकियत करार दिया है, यानी बादशाहत, और खुलफाए राशिदीन से खारिज किया। अमीर मुआविया की दूसरी गलती अपने नाखलफ बेटे यजीद को अपने बाद खलीफा नामजद करना था, जिसके जालिमाना दौर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नवासे रसूल की शहादत हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जब ये नामजदगी हो रही थी और मुआविया कह रहे थे कि मेरे और मेरे बाद मेरे बेटे से ज्यादा कौन मुस्तहिक हो सकता है, तो मेरे दिल में आया कि मैं मुआविया से कहूं कि वो जिसका बाप तुम्हारे मुकाबले पर लड़ा और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के साथ होकर तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ लड़ा, लेकिन मैंने कहा फितना पैदा ना हो, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो हजरत खलीफतुल मसीह सानी इस बारे में फरमाते हैं कि अगर मुआविया अपनी मौजूदगी में यजीद का मामला लोगों के सामने पेश न करते और बाद में कौम उसे मुंतखब करती तो हम इसे एक इंतखाबी बादशाह कह सकते थे, मगर अब न तो हम उसे खलीफा कह सकते हैं और न इंतखाबी बादशाह। हम मुआविया को गुनाहगार नहीं कहते, उन्होंने उस वक्त हालात से मजबूर होकर ऐसा किया, मगर यजीद को भी बल्कि खुद मुआविया को भी खलीफा नहीं कह सकते, एक बादशाह कह सकते हैं। इससे जायद अब अगर कोई हज़रत मुआविया पर लान तान करता है तो वो एक ऐसे मामले में दखल देता है जिसका उसे हक नहीं। अब जहां तक हजरत मुआविया के समानी ही खाके का मुख्तसर ताल्लुक है, वक्त की मुनासबत से मैं एक उचटती सी नजर डाल दूं कि ये अबू सुफियान के बेटे हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत रमला के भाई और रसूलुल्लाह के निस्बती भाई थे। फतह मक्के के मौके पर इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह से तालीफ कल्बी के तौर पर 100 ऊँटों का इनाम भी पाया। हुजूर साहब अगर जी मैं एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि मुझे बताया गया कि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में अगर वक्त हुआ तो जो अभी बाकी का हिस्सा इसका रह गया है वो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में बयान कर देंगे।